ठीक है। गुड इवनिंग। Am I audible? Oh, okay, fine. Fine. So yesterday we were on linkage and Drosophila linkage. We have seen that how these pair of chromosomes are acting at the time of linkage. So uh, that part we have done. The symbolic representation of the chromosomes, very important. Then complete linkage in Drosophila and incomplete linkage is also being done. So that is what you have to understand regarding this. Not in the fan of. Fine. So now the voice is clear. Okay. So let's see this that in linkage, do you have any doubts? Nothing? Fine. So have you gone through the textbooks? Fine. Is there anything which you have not understood regarding your text or something which is not being clear or something like that? Because this is something more than NCRT. Okay. So what you are studying right now, little bit more content is there, and that is for NEET. So you have to follow it, and so I think in textbook this much detail regarding these examples are not there. Am I right? Fine. So let's go to the next one. That genders. If we talk about the sex of an organism, see this that when you talk about the sex of an organism, first of all, we know that we have males and female category in almost all the living organisms which are in higher group of classification. Even in plants, in plants also you have male plants and female plants. In animals, if you proceed at the uh, with respect to the classification, तो अगर हम फाइलम्स देखते हैं तो once you are going towards the higher system of classification, then you come to know that आपको पता चलता है कि जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे आप उसमें डाइशियस और है ना वो वैसी वाली सब चीजें पढ़ रहे थे जिसमें
that organisms are bisexual or something like that. Okay, but later, if you go for the higher one, you come to know that both the sexes are different, organisms are different, individuals are different. So why is it so and how it is happening? That is completely genetically linked. Okay, so that part you have to understand. And see this, that when you talk about the thing that is called chromosomes. Okay, okay. So chromosomes, if you say, then as humans, if we consider, we have 23 pairs. Okay, or I can write 46 chromosomes. That is what I can write. Okay, so we know that we have 23 pairs, but out of these 23, only 22 pairs are doing something different, plus the last pair, the 23rd pair is considered as sex chromosome. That means it determines your sex. Okay, it determines, it makes you male, it makes you female. These 22 pairs are responsible for maintaining all your vegetative characteristics of a human body. Means your skin, your legs, your everything, whatever the systems you consider, digestive, respiratory, and all that. So all these things has to be controlled by these 22 pairs. Only the 23rd pair is the one which decides that you are going to be a male or a female. Okay, so that is very important regarding it. And these 23rd, the last 23rd pair of human is something which is like what we say, that basis on this, these 22 pairs will behave. Okay, what I'm saying is, just try to understand that 23rd pair, if it says that the individual is going to be a female, okay, then 22 pairs will give you the vegetative characteristics which are very much similar to the female body. Means the texture of skin, the texture of hairs, the what you say, that puberty characteristics and all that. That means shoulder widening and all that. All these things, we know that when puberty happens, that shoulders for male it widens, but female it becomes narrow. Even हमारी आवाज, voice, okay, वो वॉइस जो है उसमें चेंज, वॉइस कंट्रोल हो रही है 22 पे से, लेकिन उसे कैसा होना चाहिए, वो 23rd पेयर के इन्फ्लुएंस से ये 22 पेयर्स जो है वो काम कर रहे हैं. So these 22 pairs are called autosomes. They are called autosomes. Okay, as we know that as a human we are diploid in nature. So हमारे पास pairs में है ऑटोजोम, तो हम इसको सिंबल देते हैं ए ए. और कितने ऑटोजोम्स है हमारे? 22 ऑटोजोम्स. Okay, this is how you just write them down. And if I say sex chromosomes, that means if I write XX or XY, XX और XY क्या है? Allosomes है. These are called allosomes of sex chromosome. So 22 double A, and if I write XX, then the individual is female. If I write 22A XY, then the individual is female. Sorry, male. Is it clear to you? Understood? Okay. We are writing twice A, that shows that we are diploid. Okay, that's the reason.
If we are writing like this 22AA, then that shows we are diploid. If I write 22A plus X, that means I am talking about gamete. Okay, if I am writing 22A plus Y, then it's a sperm. This can be ova or sperm, anything. ओके एक्स है तो स्पर्म भी हो सकता है ओवा भी हो सकता है, बट आई जस्ट मेड यू क्लियर कि अगर एक ही बार लिखते हैं तो वो गैमीट्स है, दोनों में लिखते हैं दोनों बार लिख रहे हैं तो वो डिप्लॉयड कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है 22 डबल ए एंड एक्स 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 वाई. इज इट क्लियर टू यू? आर यू क्लियर विद दिस? Just hold on. Okay. Yeah, that is what regarding autosomes and allosomes can be written. So, autosomes are the pair of chromosomes which are apart from the sex chromosomes, and XX, XY अगर हम बात करते हैं तो वो allosomes हो जाती है. ठीक है, so autosomes and allosomes will together comprise to make up the chromosome set, जो karyotype बनाती है आपका. Okay, so next see this, next topic is sex. Oh, okay, fine. Okay, so see this. Sex determination, if I say, you have to determine the sex of the what we say of the many of the organisms. Then there are so many things which are responsible which determines the sex, जो decide करता है, नेचर डिसाइड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा, कैसे होगा, और उसके कुछ टिपिकल फीचर्स. सो जो क्रोमोसोमल थियरी जो है, जो हमने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ थियरी पढ़ा था उसी के बेसिस पर है कि फर्स्ट एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स की हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, हैबिट्स को, फीचर्स को, similarly even the gender को. Okay, so first you can see that example that turtles. Okay, अगर turtles का example लेते हैं, okay, अगर if the egg is being given the temperature above 30 degree और उसका जो पूरा जो process है after fertilization it is more than at above 30 degree, 30 डिग्री से ज़्यादा पर अगर उसका एग रखा जा रहा है तो वो फीमेल बन जाती है. अगर 30 डिग्री से कम का टेम्परेचर मिलता है तो वो मेल बन जाता है. लेस देन 30 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री. ये चीज समझ में आ रही है आपको? ओके, सो टार्टल्स, टॉर्टोइस, कुछ बर्ड्स में भी ऐसा होता है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Okay, now chromosomal theory of sex chromosome based on the number of sex chromosome, type of sex chromosome. This particular theory is subdivided into following types. That means
theory of heterogenesis, जेनेटिक बैलेंस, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, एनवायरमेंटल इफेक्ट आपने अभी देख ही लिया है, एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस टू। ठीक है, हार्मोन्स अगर चेंज होते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेंडर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, दैट यू मस्ट बी नोइंग। ओके, सो लेट्स सी दिस, just write down these theory and all that in your notebook, name of these theory, then we will proceed further. Is it done? ठीक है, ये based on number of sex chromosome and type of sex chromosome, it comes under heterogenesis only. Okay. Is it done? Yes. So let's proceed with this. Heterogenesis, if we say, ना सी हम बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब अभी तक हम ह्यूमन में ये पढ़ते हैं कि एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, है ना। तो अब हम जो पढ़ेंगे उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार फीमेल होमोगेमेटिक हो और मेल हेट्रोगेमेटिक हो। होमो और हेट्रो समझ रहे हो ना? Yes, mom. Okay. See this. अभी हम जो ये चीज पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये समझना है कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन को जब ये आइडेंटिफाई किया गया तो उस बेसिस पर बहुत सारी थियरीज को जो आगे प्रोसीड किया गया,
तो उसमें वन ऑफ द थियरी इज हेट्रोगेमेटिक। हेट्रोगेमिट्स बताते हैं कि हम होमो और हेट्रो की जब बात करते हैं, तो जैसे ह्यूमंस में है, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो फीमेल जो है वो क्योंकि एक्स एक्स बेयर करती है और मेल्स जो है वो एक्स वाई बेयर करते हैं और फीमेल्स जो है वो एक्स एक्स बेयर करती है, तो फीमेल कैसे भी गैमेट्स बनाएगी सभी क्या बेयर करेगा, एक्स। ठीक है, वाइल जो मेल्स हैं वो दो टाइप के गैमेट्स बनाएगी, एक्स एंड वाई, 50-50%। Okay, so males are considered as heterogametic while females are considered as homogametic in humans. Okay, and if so first जब sex determination हुआ, that was done on the bugs, grasshoppers और इन सभी पर उसको किया गया। ठीक है, so when this particular experiment was done, so it was identified that if we talk about like grasshoppers and all that, okay, so grasshoppers के उसमें फीमेल जो है वो होमोगेमेटिक है, while मेल्स, ये जीरो का मतलब है कि एब्सेंस। ओके, यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, जीरो मीन्स नो क्रोमोसोम एट ऑल। सो मेल्स आर हैविंग ऑटोसोम का सेट है प्लस 1x, सो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मैटर्स अ लॉट ओवर हियर। एक ही एक्स है तो मेल बन जा रहा है और दो एक्स है तो फीमेल बन जा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, so that means whatever ovas will be produced by females will be having a plus x। इस तरह के ओवा बनेंगे, कितने भी ओवा बनेंगे, और बट मेल के जो होंगे उसमें दो टाइप का होगा, आइदर a प्लस एक्स और a प्लस जीरो, कुछ भी प्रेजेंस नहीं है। स्पर्म्स जो है वो ऐसे होंगे। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों के बीच में, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो उससे फीमेल बन जाएगा, बट अगर ये और ये फर्टिलाइज होता है तो ऑफस्प्रिंग क्या बन जाएगा, मेल। ये चीज क्लियर आ रही है? Okay, that is how it is happening. So number of sex chromosomes matters a lot. अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इट बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्टिलाइजिंग स्पर्म, कौन सा स्पर्म जो है वो आगे फर्टिलाइजेशन में पार्ट ले रहा है, वो बहुत मैटर करता है। सो बिकॉज स्पर्म के टाइप से ही जो जिस तरह का स्पर्म है उसी से डिसाइड हो रहा है सेक्स। ओके, सिमिलरली Z0 एंड ZZ टाइप। ओके, तो Z0 एंड ZZ टाइप में सी दिस, हम ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से लग रहा है, फीमेल और मेल का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर Z0 है वो फीमेल है और यहाँ पर ZZ जो है वो मेल है। ये चीज समझ में आ रही है? सो सिमिलरली यहाँ पर जो ओवा होंगे वो दो टाइप के होंगे, बट स्पर्म जो होगा वो एक ही टाइप का होगा, मेल का, A प्लस Z होगा, और ये जो है वो A प्लस Z, A प्लस 0, these two types of ova will be produced। so जो टाइप डिफरेंट, जो हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो फीमेल है तो फर्टिलाइजिंग ओवम बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर वो मेल है तो उसका स्पर्म डिसाइड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा। ये चीज समझ में आई?
Yes, ma'am. Okay. Yes, uh, ma'am. Fine. If this is understood, then get the concept very clearly. Okay. मैम बट ये जेड जेड वाला किसका है? मतलब एक्स वाला तो ग्रास हॉपर का है। हम्म ये जेड वगैरह आपको हेन वगैरह में मिलेगा. एग्जाम्पल ऑफ हेन, कॉक्स एंड ऑल. ठीक है. यस मैम। Okay, fine. So similarly here also XX XY type. So example is given humans, fruit fly and all that. Okay. So here also humans का तो आप समझ ही चुके हो. Similarly fruit fly is nothing but the Drosophila. ठीक है. तो ड्रोसोफिला में भी एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप की कंडीशन है, तो इट डिसाइड्स की डिपेंड्स ऑन द फर्टिलाइजिंग स्पर्म. कौन सा स्पर्म जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन में, वो चीज बहुत मैटर करती है. अब इससे एक चीज समझो. ठीक है. कि एक्स एक्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम की प्रॉपर्टी क्या है? फीमेलनेस. ओके. नाउ एक्स जो है वो रेंडर करता है इंडिविजुअल में फीमेलनेस, मतलब एक फीमेल की क्वालिटीज. ओके. जैसे कि सॉफ्ट स्पोकन होना, या फिर इमोशनल, ओवरबेरिंग इमोशनल होना, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो कि द टेक्सचर ऑफ स्किन जो फीमेल्स की होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और थोड़ी लाइट होती है एज कंपेयर टू मेल्स. ओके. नाउ मेल्स आर आल्सो हैविंग एक्स. तो एक्स जो है यहाँ पर भी फीमेलनेस जो है वो रेंडर कर रहा है. जो इंडिविजुअल है उसके अंदर वो फीमेलनेस रेंडर करता है. बट द थिंग इज वाई कम्स एंड वाई, वाई जो है, जो पर्टिकुलर वाई क्रोमोसोम है, इसकी नेसेसिटी यहाँ पर क्यों है? सिर्फ इसीलिए कि जो मेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म को जो है वो मेल बनना है, और वो मेल जो है वो फर्टाइल होना चाहिए. ये सिर्फ वाई का यही काम है. बट मेल्स जो है वो thoughtful, if they should be emotional, they should have some sense, common sense of what we say socializing and all that. That is all because of X chromosome. ये क्योंकि आप ये चीज आपको, आई जस्ट डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, दैट फीमेल्स आर वेरी मच कंफर्टेबल इन सोशलाइज, और फीमेल्स आर मीन्स वेरी मच, मीन्स अगर अगर वो कोई न्यू एनवायरनमेंट में जाती है तो देन दे आर मच मोर कंफर्टेबल. आफ्टर 1 hour or after some time she has that ability to get gelled with that particular situation, as compared to male. Male takes much more longer time. ओके. तो वो आपके अंदर वो क्वालिटी क्यों है? क्योंकि आपके पास टू एक्सेस. सो दैट गिव्स यू दैट वो चार्म जो प्रोड्यूस होता है वो एक्स के वजह से होता है. ठीक है. तो और वाई जो है, वाई ह्यूमन को, मतलब मेल ह्यूमन को फर्टाइल बनाने के लिए उसकी नेसेसिटी है. बाकी सारी जो क्वालिटीज हैं एज एन इंडिविजुअल इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम ओनली. ओके. सो बाकी जो मेलनेस की वो जो सारी चीजें हैं कि बियर्ड आना, मुस्टेच आना, थोड़ा फिजिक जो है हैवी होना, ये सब होना, ये सब जो है वो हॉर्मोन्स है. ठीक है. तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल इज ऑब्टेन थ्रू एक्स क्रोमोसोम बेसिकली. इज इट क्लियर टू यू? आ रहा है समझ में ये? यस मैम। Okay, so that is very important. Fruit fly is nothing but Drosophila. ठीक है. Now ZW and ZZ type. Examples are birds, reptiles, some fishes, butterflies, etc. So definitely we are having the combination of here also female and male. ये भी female है, sorry female है,
और ये मेल है। ओके, सो birds, reptiles, butterflies, all these are going to be a male or female. It depends on the fertilizing ova, क्योंकि इससे जो भी आपके ओवा या जो भी एग्स और स्पर्म्स बन रहे हैं वो A plus Z and A plus W इस टाइप से बन रहे हैं, while all the male sperms are A plus okay, A plus Z. Is it clear to you? ये जो दोनों हम नंबर या टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, ये हम किस में कंसिडर करेंगे? हेटेरोगेमेसिस में, क्योंकि जहां पर भी हेटेरोजाइटिक कंडीशन है, हेटेरोगेमेटिक कंडीशन है, वो चीज बहुत मैटर करती है फर्टिलाइजेशन के टाइम। मतलब इंडिविजुअल फीमेल है या इंडिविजुअल मेल है, दैट इज गिवन बाय द पर्टिकुलर, अगर मेल्स जो है वो होमोजाइटिक कंडीशन है और फीमेल्स की हेटेरोजाइटिक कंडीशन है, तो ओवा बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है यहाँ पर। इज इट क्लियर टू यू? Understood? Yes, ma'am. Good. So next, now the thing is haploid diploid mechanism. ये पढ़ के आपको बड़ा मजा आएगा. See this that let me zoom it first of all. अब थोड़ा अच्छे से पढ़ पाओ उसको. Okay. So what you write it down later on. आप बाद में लिख लेना इसको. Okay. See this haploid diploid mechanism. हनीबीज बड़ा फनी सा इन लोगों का सेक्स डिटरमिनेशन होता है. फनी इन द सेंस कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं. एनवायरनमेंट की इन्वॉल्वमेंट, न्यूट्रिशन की इन्वॉल्वमेंट, और हनी बीज जो है वो सारे अगर आप ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करो तो मोस्ट डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनिजम्स में आती है हनी. ओके, आई थिंक आप लोगों ने हनी बी का जो वो हाइव होता है वो देखा होगा, छत्ता. हैव यू सीन इट? Yes, ma'am. ओके, एंड यू मस्ट हैव सीन दैट जो ये हनी बीज हैं वो बहुत ही एक उनका पैटर्न होता है. ओके, they work accordingly. They are if they are not disturbed, they are not going to disturb anybody. So honeybee का जो mechanism है वो जो है वो इस तरीके से है कि डिप्लॉयड कंडीशन में, ओके, डिप्लॉयड कंडीशन में इनके पास 32 क्रोमोसोम्स होने चाहिए. ओके, सो 32 क्रोमोसोम्स अगर हैं तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मतलब डिप्लॉयड हनी बी है. अब डिप्लॉयड हनी बी है, आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा देख के. सो ये मैकेनिज्म पूरा कि जो फीमेल्स हैं वो डिप्लॉयड होती है और हनी बी के जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं. ओके, सो ये जो बीज है ये मियोसिस से अपने ओवम बनाती है और मेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू ही अपना गैमीट प्रोड्यूस करता है. ओके, सो नाउ सी दिस दैट गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू फीमेल्स. ये फीमेल्स जो है वो गैमीट प्रोड्यूस करती है. अगर सब ठीक है. ओके, सो फीमेल अगर गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं तो 16 गैमेट्स, अगर 16 गैमेट्स जो है वो पार्थेनोजेनेटिक कंडीशन में मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है उसके साथ. पार्थेनोजेनेसिस मतलब फीमेल ने जो एग दिया है
उसको अगर कोई भी मेल स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो चीज रह जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, सारे के सारे मेल्स बन जाते हैं। मतलब जब भी वो हैच होगा और जब भी वो मेच्योर होके बाहर निकलेगा ऑर्गेनिज्म, दैट टाइम दे विल बी कंसिडर्ड एज मेल। ठीक है। सिमिलरली इफ फर्टिलाइजेशन होता है, if this fertilization occurs, then diploid organism के प्रोडक्शन होगा। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा, तो अगर उसमें से एक किसी स्पेशल उस फर्टिलाइज्ड एग को हनी बी का जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करता है, उसके लिए पूरा एक जो ये छत्ते में एक जो चैम्बर होता है उसको सबसे ज़्यादा क्लीन और बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको उस जगह पर उस एग को रखा जाता है और उसको रॉयल जेली प्रोवाइड किया जाता है। रॉयल जेली मीन्स स्पेशल फ्लावर से कलेक्ट किए हुए जूसेस। वो अगर उस एग को मिलेगा तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फ्यूचर में बन जाएगी क्वीन। ठीक है, वो उस छत्ते की क्वीन बनेगी। बाकी के जितने भी एग्स हैं जो डिप्लॉयड है, वो सभी के सभी वर्कर कंसिडर होंगे एंड दे ऑल विल बी स्टेराइल फीमेल्स। स्टेराइल फीमेल्स आप समझ रहे हो? स्टेराइल फीमेल मतलब ये जो काम कर रहा है ये सिर्फ क्वीन कर सकती है एग्स देने का, बाकी सारी फीमेल्स ये का चीज नहीं कर सकती। ठीक है, तो सिर्फ क्वीन फीमेल जो है वो एग देगी और उस एग से जो भी डिप्लॉयड एग जिसको रॉयल जेली मिलेगा वो क्वीन में कन्वर्ट होगा। रेस्ट ऑफ देम अदर्स जो है वो सारे के सारे वर्कर्स बन जाएंगे। वर्कर्स मीन्स जो आपने देखा होगा छत्ते के आसपास उड़ते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो वो क्यों उड़ते हैं? वो प्रोटेक्शन के लिए उड़ते हैं। फिर दूर दूर से काम करना, पानी लेना और कलेक्ट करना फ्लावर्स में से, वो सारी चीजें जो है वो ये वर्कर्स करते हैं। और ये जो मेल है वो दे विल गिव द प्रोटेक्शन टू द क्वीन, and out of all these males the queen will select only one male to have the copulation, and after that the male will die. Okay, once the copulation is being completed, the male cannot survive. That means father of these particular organism cannot survive. Is it clear to you? Yes. A big story but nice one. A very a very typical one. So this is how the sex मैम determine. ऐसा क्या है रॉयल जेली? It is just the nectar which is collected from the special flowers at the special time. That means वो कलेक्शन जो है, जो सन रेज जब बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे कलेक्ट करना, and that type of collection is being separated and it is kept separately only for that particular egg, जो पूरा हाइव डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर एग ही क्वीन में कन्वर्ट होगा। ओके, सो वो रॉयल जेलीज में कंसिडर किया जाता है, जिसको रॉयल जेली मिलता है वो क्वीन बन जाता है। ठीक है, बाकी सबको भी खाना पीना मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, बट जो स्पेशल वाला है, यू मस्ट बी, अगर आप हनी बीज के बारे में पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि जो क्वीन का जो चैम्बर होता है उसमें और कोई भी ऑर्गेनिज्म भी नहीं, मतलब और कोई भी इनमें से रह जा नहीं सकता, एंड इट शुड बी क्लीन्ड कंटिन्यूअसली। उसको क्लीनिंग करना, उसको फूड प्रोवाइड करना, वो सारा काम ये वर्कर्स करते हैं। एंड मेल जब भी क्वीन अगर कभी बाहर जाती है उसको प्रोटेक्शन देने का काम ये मेल्स का। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay, so this is how the honeybee works. So this is what the paragraph for the जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है, वो इसी में है। You just write this down because it will help you
when you will be studying it. Just let me, एरो कहाँ चला जाता है? Okay, just write this down. हिमनेप्टोरेंस मीन्स हिम, क्योंकि वो जो आवाज आती है वो हाइम की आवाज है, इसलिए उनको हिमनेप्टोरेंस बोला जाता है। पर्टिकुलर ऑर्डर है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आपको इसमें से लिखना आ रहा है समझ में कि बड़ा ही कर दो? नो मैम, ऐसे नहीं समझ आ रहा। ओके, जस्ट टेल मी कि कब मूव करना है तो मैं थोड़ा सा मूव कर दूं। मैम थोड़ा उस साइड।
Is it done? हो गया? मैम एक मिनट। हाँ। Shall I change? Churchill? ओके। चर्चिल आपका? यस मैम। ओके। सुष्मिता कर दूं, हो गया? हाँ मैम हो गया। ओके। दिस चार्ट, इसे बड़ा करने की जरूरत है या आप ड्रॉ कर लोगे? ठीक है मैम। ओके। ठीक है, तो देखो, हनी बीज में मेल हैप्लॉइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड जो है जब वो अपने गैमेट्स बनाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि 16 का 8 रह जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, 16 16 ही फॉलो होता है। Is it done? यस मैम। Okay, fine. Now, the next is sex determination in Drosophila. Okay, so genetic balance theory, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, तो हमने ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स तो इस स्लाइड में पढ़े ही थे यहाँ पर। ठीक है, तो ड्रोसोफिला के पास जो है वो तो हमें ये समझ में आ गया कि 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं और 1 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर है अगर, तो दिस वन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन्ड है दैट इज, इसमें एक चीज ये बताइए कि रेशियो बिटवीन द सेक्स मींस एक्स क्रोमोसोम बेसिकली एंड ऑटोसोम्स विल डिटरमाइन द सेक्स। ओके, सो ये जो है वो सेक्स कैसे डिसाइड करेगा, दैट पार्ट वी विल बी डूइंग। आप ये चार्ट जो है वो बाद में स्टडी करो, लेकिन पहले ये चीज समझो कि as we know that if you have female and male,
Okay, so let me describe you that first of all हम ये लिख लेते हैं कि अगर हम डिस्क्रिप्शन वाइज देखते हैं तो फर्स्ट here see this that Drosophila flies having X0 chromosomes were male. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जैसे ह्यूमंस में एक्स वाई होता है वैसे ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में भी एक्स वाई होता है, बट अगर X0 कंडीशन है तो वो भी मेल कंसिडर होते हैं, बट दे वर कंसिडर्ड एज स्टेराइल. ओके, ये जो है क्योंकि उसके पास एक्स क्रोमोसोम है एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो ये बताता है कि मेल बनाने के लिए वाई की नेसेसिटी नहीं है. वाई सिर्फ इसलिए जरूरी है कि फर्टाइल हो जाए वो ऑर्गेनिज्म, इसलिए वाई क्रोमोसोम की नीड है. ओके, सो हम X0 कॉम्बिनेशन से ही काम करेंगे सारा कि किस तरीके से ये जो X0 है वो इसमें जो मैटर करता है. सो एक्सपेरिमेंट में जब ड्यूरिंग ये पूरा परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट, तो ये चीज आपको समझनी है कि लेट मी टेक दिस छोटा कैसे if I say that here, ठीक है, अगर हमारे पास फीमेल जो है 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, ओके, प्लस हम इस कंडीशन को ले, इसे ट्रिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं. जैसे हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, वैसे ट्रिप्लॉइड भी होता है. ठीक है, सो ट्रिप्लॉइड फीमेल इज बीइंग टेकन. सिमिलरली हियर दैट जो मेल है वो डबल ए और एक्स वाई डिप्लॉइड मेल है. ओके, सो मेल इज this is what the condition of a particular female and male Drosophila should be. now जो फीमेल है, ठीक है, अब if this is the possibility then type of ovas produced by this is, एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है this condition, this condition, ये कंडीशन, ये टाइप ऑफ ओवास की कंडीशन हो सकती है. 4 टाइप्स. इज इट क्लियर टू यू? अंडरस्टूड. और मेल जो है उसके पास क्योंकि ए एक्स वाई है तो ये कंडीशन होना चाहिए स्पर्म्स की. ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ओके, सी दिस. अब हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे. इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ओके, फाइन. सी दिस. नहीं होगा. सो अगर फीमेल ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, एंड जो मेल है वो डिप्लॉइड है, तो टाइप्स ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एग्स प्रोडक्शन आर ऑफ दीज 4 टाइप्स. सो सी दिस, जब इस टाइप के स्पर्म और एग्स जो है कंबाइन हो रहे हैं तो अभी आप ये चीज को मत देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो मत देखो. फ्यूजन के बाद क्या रिजल्ट है दैट यू शुड अंडरस्टैंड. फ्यूजन के बाद हमारे पास डबल ए डबल एक्स कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन हियर. ओके, आ गया. here so fusion
अगर हम लेते हैं ये है मेल और ये है पूरा फीमेल. So these are the types of sperms and these are the types of eggs. Okay, so this is what you have to see this. इस तरीके से हमको लेना है. So अरे चला गया. Sorry, a plus x. Let me write down. ओके, सो यहाँ जो कंडीशन है वो हमें क्या मिलेगी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, दैट वी हैव टू राइट. सो जैसे हमने चेकर बोर्ड बनाया था आर आर वाई वाई वाला, सिमिलरली सो ड्रॉ दिस. इसमें ये कंडीशन है, इसमें मिलेगा हमको दिस वन. ओके, इज इट क्लियर टू यू क्या हो रहा है? ठीक, ये चार्ट आप खुद भी ड्रॉ करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय मेकिंग दिस चार्ट, कि इतने सारे जेनेटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं ड्रोसोफिला में. जो हमने वो पढ़ा कि ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन का सेट ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा. ट्रिप्लॉयड भी पॉसिबल है, हैप्लॉयड भी पॉसिबल है. सो दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ अब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा होगा, मतलब वो फीमेल होगा, मेल होगा, नॉर्मल होगा, स्टेराइल होगा, फर्टाइल होगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट टाइप ऑफ, मतलब कितने एक्स हैं और कितने ऑटोजोम्स, मतलब ऑटोजोम्स और एलोजोम्स का जो रेशियो है वो कैसे बनना है. उस बेसिस पर ही ये सारी चीजें डिसाइड होगी पर्टिकुलर कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है. ठीक है, तो सी दिस हियर. ठीक है, सो हियर इफ यू वांट टू सी दिस जो आपका चार्ट बना है उसके अकॉर्डिंगली, तो अगर हम रेशियो कंसिडर करते हैं एक्स एक्स अपॉन ए, एक्स बाई ए का रेशियो लेना है, तो इसमें दो एक्स है दो ए है, मतलब 2/2 विच इज इक्वल टू 1. ये मैथ थोड़ा अजीब सा है बट फॉलो. ठीक है, तो अगर 1 आता है दैट मीन्स द फीमेल हैज टू बी जनरेटेड, बिकॉज एक्स एक्स कंडीशन है सबसे पहले, तो फीमेल होनी चाहिए, और 1 है तो वो नॉर्मल होनी चाहिए. ठीक है, सिमिलरली ट्रिप्लॉइड कंडीशन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोजोम और एक्स का जो रेशियो है वो 1 आ रहा है, तो फीमेल तो प्रोड्यूस हो ही रही है, बट इट हैज टू बी नॉर्मल. नो मैटर उसके पास 3 एक्स है और 3 ए है, उससे
या दो ए है या दो एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फीमेल बननी चाहिए और वो नॉर्मल बननी चाहिए। ठीक है। नाउ सी दिस, दैट इफ द रेशियो इज 3/2, तो जो आंसर है आपका वो 1.5 हो जाए। So 1.5 means super sterile female. It have XXX combination है, that means female. More than one चला जाता है तो सुपर फीमेल, मतलब ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं कि हम स्टैंडर्ड रेशियो से अगर ऊपर जाते हैं तो टर्म उसमें प्रीफिक्स लगा देते हैं सुपर। सो सुपर फीमेल होनी चाहिए बट वो स्टेराइल हो जाएगी। ओके, वो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एंड सिमिलरली हियर यू कैन से 2/3 लेस देन 1 का रेशियो है। सो जो ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, now here see this, if x upon डबल ए, मतलब एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है क्योंकि, तो मेल तो बनना है। ठीक है, और एक एक्स है और एक वाई है, 0.5, दैट मीन्स नॉर्मल मेल। ठीक है, नॉर्मल फीमेल बनने के लिए रेशियो आपको आंसर मिलना चाहिए 1, और नॉर्मल मेल के लिए आपको चाहिए 0.5। अगर इससे फ्लक्चुएट हो जाता है तो फिर वो चीज जो है ऑर्गेनिज्म है वो कुछ और बनता है। ठीक है, नाउ हियर सी दिस, एक्स ट्रिपल ए का रेशियो है 2x और ट्रिपल ए 0.67, यहाँ भी 0.67 है। दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्स, दिस इज कॉल्ड स्टेराइल वेल दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्स स्टेराइल। इंटरसेक्स क्यों है? क्योंकि इसके पास वाई भी है, यहाँ पर वाई नहीं है, तो ये सिर्फ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि वाई है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरसेक्स स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। रेशियो इज सेम 0.67 0.67। ठीक है, वाइल अगेन सी हियर, यहाँ पर भी वाई है, बनना क्या चाहिए, मेल, बट डोमिनेंसी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज फीमेल। और क्योंकि डोमिनेंसी एक्स की और रेशियो जो है वो 1 बन रहा है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक्स एक्स वाई कॉम्बिनेशन होने के बाद भी नॉर्मल फीमेल मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? Okay, then see this, here sterile meal xy 0.33, so that has to be male and it has to be sterile. Is it clear? ये चीज समझ में आ रही है आपको? This is called genetic balance theory. ये आपको क्लियर हो रहा है बेटा? Is it clear to you? थोड़ा टिपिकल सा है जेनेटिक बैलेंस, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स।
ओके। और मैम 0.67 तो दो जगह है, लेकिन एक स्टेराइल है और एक इंटरसेक्स स्टेराइल है। बिकॉज इंटरसेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इट? क्योंकि वाई क्रोमोसोम की भी प्रेजेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरसेक्स। बाकी इधर जो है वो सिर्फ एक्स एक्स है, तो वो इंटरसेक्स नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू यू? नहीं समझ आया। See this, that here presence of Y chromosome is there, तो मेल फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों इन्वॉल्व हो रही है, दैट्स वाई इंटरसेक्स। बट यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्स है, नो वाई इज देयर, सो इट हैज टू बी ओनली स्टेराइल। ओ ठीक है। Okay, and if in any of the condition अगर एक्स क्रोमोसोम रिसीव नहीं होता, ठीक है, then the organism will die, they cannot survive without X chromosome, organism will die. Clear? Any doubts, Churchill? नो नो। Fine, got it. And Dipanvita, कोई डाउट है बेटा? Any doubts बेटा? Is it clear? See, जी जब आप जेनेटिक्स की बात करते हो तो देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। ओके फाइन, सो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। सडनली अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये कैसे ये ट्रिप्लॉइड हो गया है, कैसे क्यों हो गया है, ये हो गया है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड कंडीशंस पॉसिबल हैं, स्पेशली लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। आप अभी प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो प्लांट्स भी ट्रिप्लॉइड होते हैं, प्लांट्स भी पॉलीप्लॉइड ही शो करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिप्लॉइड कंडीशन ही होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तभी, ट्रिप्लॉइड्स भी होते हैं, क्वाड्रप्लॉइड्स भी होते हैं, एनीथिंग कैन बी पॉसिबिलिटी। सिमिलरली इंसेक्ट्स और इनमें ये ट्रिप्लॉइड वगैरह होना, ये सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर ह्यूमंस में ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो जाती है तो फिर ह्यूमन जो है वो कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। सो दैट लीड्स टू द मीन्स development of something which is not normal, so that has to be taken care of, क्योंकि humans ऐसे रेशियो पे काम नहीं करते, it is only for the insects. Understood this? यस मैम। Okay, fine. Just do one thing, read your textbook according to this particular sex determination वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा रीड कर लो अच्छे से, एंड once you read it, have a little bit of break, and then we will
uh, follow up further after this. Is it clear? Okay, so I will again start. It is 5, almost 5:40 right now. Okay, so 15 minutes, will it be enough? Yes, ma'am. Okay, so 15, after 15 minutes we will be meeting again, means 5:55. Okay, so read and have a break time.